Hey, hi guys. Good morning. Okay, let's start because there are already 9:10. Okay, we'll start today's. We are starting the next point, that is a polymorphism. Okay, so we already discussed what is a polymorphism. Polymorphism is a process that we are creating many forms of the single function. Okay, and that single function depend upon the different parameters that we can identify. Okay, the polymorphism means what we are having two classification of the polymorphism: function overloading and function overriding. Okay, and before function overloading we are also having one concept that I already told you, that operator overloading. I just told you the operator overloading, but we have not seen what is a operator overloading, right guys? So today we'll see some example of the operator overloading. Okay, before going to start the polymorphism, okay, you must know the basic criteria that I already told you that basic criteria is what is a function. Okay, what is a function, then what is the operator, then how to what is the overload, and what is the override. These four concepts that keep in mind. Okay, so before going to start anything, I will tell you what we need to know about operators. Okay, then functions. Okay, then overloading. Okay, and overriding. Okay guys, these four concept that we need to know. So what are the operators? We are having different सर types of operators. Yes. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अरे हाँ, मैंने किया ही नहीं है बेटा, कर रहा हूँ। आज हमको यह भी पढ़ना है कि एक्चुअली जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम का लिंकिंग कैसे होता है, मतलब किसके साथ होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये भी हमको देखना है। उस लिंकिंग को बोलते हैं बाइंडिंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बाइंडिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग। यस। हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, कर रहा हूँ मैं अभी, स्क्रीन करते करते बोल रहा हूँ आपको। वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा मशीन, आज पता नहीं कुछ क्या होगा। तो अर्ली बाइंडिंग में टू टाइप्स आते हैं। एक तो आता है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। देखो नाम में ही पता चलता है, अर्ली बाइंडिंग मतलब एग्जीक्यूशन से पहले, और लेट बाइंडिंग मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद कुछ नहीं होता है, ध्यान में रखो। ठीक है। सो बाइंडिंग मीनिंग व्हाट, जो आइडेंटिफायर्स हमने कोड में लिखा है। आइडेंटिफायर्स मीन्स व्हाट, दैट मे बी डिक्लेयर इन एनी फंक्शन, एनी वेरिएबल। okay, this called the identifiers because we are identifying that name of the function, name of the variable using the names, okay, that we have declared inside the class. Okay, so these are the identifiers that we are declared inside the function or class. Okay, using we can identify it using the name, its size, okay, and its type. Okay, so if that identifier are normally executed, okay, as per the instruction given by the compiler, and it is directly linking to the compiler without any intervention, without any
Guys, are you getting my voice? Yes, sir. Where are other students? Only 3 students are there. Only Sakshat, Sauranjali, and Saurabh is there. सर पता नहीं क्या हुआ. Okay. Now getting my screen? Yes, sir. Okay. So we are talking about what? An operator. Operators means what? जो भी ऑपरेटर आपको पता है वो बताओ मुझे. कौन से ऑपरेटर है? यस प्लीज. एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है. राइट गाइस? यस. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है. देन कोलन ऑपरेटर, देन स्कोप ऑपरेटर, देन क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर. जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है अपने पास वो सभी क्या है? ठीक है. सो अगेन दिस ऑपरेटर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. बाइनरी ऑपरेटर, mainly 2 types. There are also again 3 types, but we are finding binary. Sorry, first है unary operator, and then binary, और एक है ternary. Ternary, finary ऐसा कुछ नहीं है, 3 ही है. ठीक है. But most of these 2 are going to be used, a unary, binary, and the ternary. Okay. So can you tell me which operator comes under the unary operator? Yes. इसका एक क्राइटेरिया है कि यूनरी ऑपरेटर कैसे कंसीडर करना है और कैसे फाइंड आउट करना है. बाइनरी का भी एक क्राइटेरिया है. ठीक है. बताओ कौन से है? यूनरी मतलब एक सिंगल, बाइनरी मतलब 2, और टर्नरी मतलब 3. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाइनरी, बाइनरी एंड टर्नरी? विच ऑपरेटर्स आर कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स? यस प्लीज. बताओ फास्ट. बताओ यूनरी में कौन से ऑपरेटर आते हैं, बाइनरी में कौन से आते हैं, टर्नरी में कौन से आते हैं? ये तीनों, ये देखो अभी अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा, यूनरी इज अ प्लस टाइप ऑपरेटर. ये माइनस नहीं है, ये एरो है, ये ध्यान में रखो. कब बोलोगे सर माइनस अभी जगह आ रहा है? यूनरी में प्लस लिखा मैंने, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस? यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेटर है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो. ठीक है. तो ये इसके लिए यहाँ तो ऐसा होगा, प्लस 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 प्लस, सॉरी प्लस प्लस होगा. अगर आप ये दोनों का ऐसे अंदाज लगा रहे हो, ठीक है, तो इस टर्नरी में क्या होना चाहिए? प्लस 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 होना चाहिए. फिर तो प्लस 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 तो ऐसा कभी भी कोई भी ऑपरेटर नहीं रहता है. यस, देयर आर सिंगल प्लस और वी कैन हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर. गेटिंग और नॉट? यस प्लीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे बताओ यूनरी ऑपरेटर कैसे पहचाने, बाइनरी ऑपरेटर कैसे पहचानेंगे, और टर्नरी ऑपरेटर कैसे पहचानेंगे? तो ये जो ऑपरेटर टाइप है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेंड्स, नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटर. ऑपरेंड्स का मीनिंग पता है आपको? ठीक है. सपोज देयर आर 2 वेरिएबल्स, सपोज इंटीजर a, b. ठीक है. अगर आप दोनों का एडिशन करना है, ठीक है, तो मैं सी आउट में लिखूंगा a प्लस b. क्या मीनिंग होता है इसका? अगर ये जो बीच वाला ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? 2 ऑपरेंड के साथ आ रहा है. सो दिस विल कंसिडर एज अ बाइनरी. तो ये जो प्लस है ये किस में आता है? बाइनरी में आता है. बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड शुड बी देयर. ओके, दैट विल बी कंसिडर एज अ बाइनरी ऑपरेटर. तो बहुत सारे ऐसे बाइनरी ऑपरेटर है. कौन से है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, सॉरी माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मॉड भी है. ठीक है. तो ये सारे ऑपरेटर किस में आते हैं गाइस? यस, बाइनरी में आते हैं.
जो दो ऑपरेंड के साथ एग्जीक्यूट होता है। नाउ व्हाट इज यूनरी कंडीशन? जैसे कि यहां हमने डिक्लेयर किया अगर मुझे ए का वैल्यू 1 से बढ़ाना है तो मैं इसको प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। तो देखो ए के साथ कौन आ रहा है अभी? यस, प्लस प्लस आ रहा है। तो मैंने पहले बोला था कि योर ऑपरेटर इज डिपेंड अपॉन नॉट एक्चुअल ऑपरेटर, इट्स डिपेंड अपॉन द ऑपरेंड्स। तो जब प्लस प्लस के साथ ओनली वन ऑपरेंड इज कमिंग, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ यूनियरी ऑपरेटर। तो ये क्या हो गए? प्लस प्लस माइनस माइनस, दीज आर द यूनियरी ऑपरेटर। नाउ टर्नरी ऑपरेटर मीन्स व्हाट? यस प्लीज। देखो माइनस, ये जो माइनस है वो यूनियरी में भी आता है। कैसे आता है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए इनटू -1 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट गाइस? माइनस ए लिखा तो क्या होगा, आपका जो ए का वैल्यू है दैट विल बी कंसीडर इनटू द माइनस। ओके, सो दिस इज व्हाट द यूनियरी आल्सो। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी के लिए क्या बोलना है हमको कि सपोज आई वांट टू चेक वन कंडीशन दैट my a is greater or not। सपोज मैंने a का वैल्यू 10 दे दिया और b का वैल्यू 5 दे दिया। now if I write this type of condition, if okay a is greater than b, this condition will be true or false? yes, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये? यस गाइस, ट्रू है सर। यस इट इज अ ट्रू। अभी यही कंडीशन में टर्नरी ऑपरेटर में लिखूंगा, ठीक है। व्हाट द टर्नरी ऑपरेटर सेज, एक बुलियन वेरिएबल ले लूंगा मैं, ठीक है। बुलियन वेरिएबल लेने के लिए बुल लिखना है या बुलियन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इक्वल टू, अगर ए ओके इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां क्वेश्चन मार्क डालना है। क्वेश्चन मार्क मतलब दिस इज अ कंडीशन, दिस इज नॉट एन ऑपरेटर, दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ फर्स्ट ऑपरेटर। अगर ए बड़ा है तो ए को रिटर्न करो, ठीक है, और बी बड़ा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बी रिटर्न होगा। दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब ये एक कंडीशन है, ये ध्यान में रखो, ये ऑपरेटर नहीं है, पहले बोल रहा हूं मैं। दिस इज अ कंडीशन, सो देयर आर टू ऑपरेटर्स 1 and 2 and these are coming with three operands। फर्स्ट ऑपरेंड कौन है, ये कंडीशन। सेकंड ऑपरेंड कौन है, ये वेरिएबल। और थर्ड ऑपरेंड कौन है, ये बी, ठीक है। आप यहां ऐसे पास कर सकते हो ट्रू, ठीक है, नहीं तो फॉल्स, ऐसे भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वैल्यू पास करना है तो यहां लिखो वैल्यू, उसके ऊपर क्या है, डिपेंड्स है। यह हमने बुलियन लिखा इसीलिए ट्रू फॉल्स रिटर्न किया। अगर हमको इंटीजर करना है, इंटीजर सी जो बड़ा है उसको सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा इधर? यस गाइस, ए लिखो, ए रिवर्स हो जाएगा, अगर बी बड़ा है तो बी जाएगा, ठीक है ना? कंडीशन समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड द टर्नरी। टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंड्स हैं। ये पहला ऑपरेंड हो गया, ये दूसरा ऑपरेंड हो गया और ये तीसरा ऑपरेंड हो गया। इन तीनों के बीच में दो ही ऑपरेटर है, एक है क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर और एक है कोलन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आ गया व्हाट इज द ऑपरेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस? इसको मैं निकाल देता हूं। नाउ फंक्शंस। फंक्शन का क्या है, फंक्शन एक्चुअली होता क्या है पता होना चाहिए। तो फंक्शन के पता होने के लिए आपको चाहिए फंक्शन का सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, यस बराबर है ना, रिटर्न टाइप, देन लिखेंगे शॉर्ट में फंक्शन, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, बस इतना ही है। ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। देन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ये हमने ऑलरेडी देखा है, ओके। ओवरलोडिंग का क्या हमने एग्जांपल कांसेप्ट बोला था आपको, सेम, ओके, मेनी functions having same name, okay, but condition है उसमें, but with different types of parameters, params, ठीक है। इसमें क्या है गाइस, ओवरराइडिंग में many function having same name and with same types of parameters, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल का है, इट्स पॉसिबल इन, यस गाइस,
किसमें पॉसिबल है? पॉसिबल इन सेम क्लास ओनली, ठीक है। और ये कहाँ पॉसिबल है? इन डिफरेंट क्लास, नॉट इन द सेम क्लास। क्यों डिफरेंट क्लास में? क्योंकि दोनों का नेम भी सेम है, पैरामीटर सेम भी है, तो कौन सा कॉल करना है ये कंफ्यूजन हो जाएगा कंपाइलर को, दैट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूटी। समझ में आ गया? यस, व्हाट इज अ ऑपरेटर, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज अ ओवरराइडिंग। तो ये चारों चीजें हमको क्या करना है इस पॉलीमॉर्फिज्म में चेक करना है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द new concept, that is a polymorphism, and polymorphism is always start with the bindings. Okay, so binding means what? Actually we are converting or we are using the identifiers for the execution. Simple है। identifier मतलब ये देखो आपके सामने एक प्रोग्राम दिख रहा है आपको। yes, these are the identifiers, name of the function or name of the variable, these are the identifiers that we can identify, yes this is a function or this is what? yes guys, what is this? this is the variable और this is the object। हम आइडेंटिफाई करना मतलब वो क्या हो जाएगा, जिसको भी आइडेंटिफाई करेंगे उसको मेमोरी जरूर लगता है। ओके, सो व्हाट इज द एक्जेक्टली बाइंडिंग? बाइंडिंग refers to process of converting identifiers, okay, such as variable, performance names। performance name means what? any function जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस का कोड लिखते हैं। नेम इनटू एड्रेसेस मतलब आपका जो आइडेंटिफायर है, देखो मैंने पहले बोला था कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, तो उसके 3 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं, उसका नाम, उसका वैल्यू और उसका एड्रेस, ठीक है ना। तो जो भी आइडेंटिफायर है उसको एड्रेस में कन्वर्ट करना है। अभी देखो जहां जहां एड्रेस वर्ड आता है वहां वहां पॉइंटर कंसेप्ट आ जाता है। यस और नो? हमने लास्ट टाइम ही देखा था, वेरेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेसेस ओवर देयर योर पॉइंटर concept comes in a picture. Okay, a binding is a done for each variable and functions। yes, मैंने ऑलरेडी बोला कि बाइंडिंग सभी के लिए है, फंक्शन के लिए है, वेरिएबल के लिए है, क्लास के लिए भी बाइंडिंग है, क्योंकि इफ यू आर राइटिंग द क्लास, योर क्लास इज compulsory need to bind with the variables and function, and that class object we are going to be binding with the compiler। बराबर है कि नहीं? जब हम क्लास लिखते हैं तो क्लास के अंदर हम वेरिएबल फंक्शन लिखते हैं, उस वेरिएबल फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? using the object of the class, so that object also is an identifier and that object is going to be called, and that object also going to be converted into address। देखो यहाँ लिखा है हमने, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ये देखो डिराइव्ड का जो ऑब्जेक्ट है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यस, पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो डिराइव्ड है इसका एड्रेस किसको जा रहा है? अभी इस बीपी को जा रहा है। बीपी मतलब बेस पॉइंटर। पिक्चर क्लियर गाइस? दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। For example, for functions it means that matching the call with the right function identifier definition by the compiler। देखो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमने कितने फंक्शन कॉल किए। जितने भी फंक्शन एग्जैक्टली कॉल हुए उसके नाम को लेकर वही फंक्शन क्या होते हैं? बाइंडिंग में आ जाते हैं। जो फंक्शन कॉल नहीं हुए हैं वो बाइंडिंग में नहीं आते, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन या डेफिनेशन होगा, पर उसका एग्जीक्यूशन में कोई, हाँ ये एक बात है जी, जो भी चीजें एग्जीक्यूशन में आती है दैट ऑल ओके स्टोरेज और वी कैन से स्टोरेज आर कम्स इनसाइड द बाइंडिंग। जितने भी चीजें एग्जीक्यूशन में आती है वो सभी चीजें क्या कंसीडर होती है? यस गाइस, बाइंडिंग में कंसीडर होती है। तो बाइंडिंग समझ में आ गया एक्चुअली है क्या बाइंडिंग? यस प्लीज, बाइंडिंग समझ में आ गया? बाइंडिंग का सिंपल है, कन्वर्टिंग आइडेंटिफायर्स इनटू एड्रेसेस। मतलब जो आइडेंटिफायर्स है, वेरिएबल, फंक्शन, क्लास का ऑब्जेक्ट जितने भी है उसको एड्रेस मिलना। एड्रेस मतलब आपको उसको स्टोर करना है किधर, तो वो एड्रेस मिलना मतलब बाइंडिंग, ठीक है ना। और एड्रेस के ऊपर जब के वैल्यू फर्ज करने का, प्रोसेस करने का, उसके ऊपर ऑपरेशन करने का, दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग। ये कौन करता है पता है आपको? ये बाइंडिंग कौन करता है? ये देखो यहां ये आदमी कर देता है। कौन करता है बाइंडिंग? आपका कंपाइलर, बराबर ना। क्योंकि ये देखो हमारा जो भी काम है वो कंपाइलर कर देता है, सिर्फ बाइंडिंग ही नहीं, सभी बाकी के सभी काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। इनपुट लेने से प्रोसेसिंग करने तक, और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। सो इट्स अ टोटल होल एंड सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंपाइलर दैट it make a successful binding for all identifiers। Got it guys? Now line number 4, read it carefully। it takes place either at compile time or at run time। दोनों एक टाइम कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखो।
एक तो बाइंडिंग क्या होगा, कंपाइल टाइम होगा, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, और एट द रन टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन होगा। कंपाइलेशन मतलब एग्जीक्यूशन के बाद की चीजें कभी भी मैटर नहीं करती है, ध्यान में रखो। एग्जीक्यूशन के बाद क्या मिलेगा आपको, फाइनल आउटपुट मिलेगा, और फाइनल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट। ओके, इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग इनपुट, ऑब्वियसली यू विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। तो प्रोसेस करने का काम मतलब कंपाइलर आपका जो इनपुट है वो राइट या रॉन्ग नहीं कंसीडर करता है। वो क्या करता है, सिर्फ उसका काम क्या है, टेक द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड शो द आउटपुट और प्रोवाइड द आउटपुट। ओके, दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपाइलर। सेम लाइक योर गूगल। गूगल क्या करता है, आपका जो इनपुट दिया हुआ डेटा है उसको लेता है, प्रोसेस करता है और आपको शो करता है। अगर आपने गलत वर्ड डाले तो वो गलत आउटपुट देगा, अगर आपने सही वर्ड डाले हैं जो आपको सर्च करना है तो आपको सही आउटपुट देगा। Same like it's a responsibility of the compiler and responsibility of the Google that he has to answer of your all questions. इधर भी ऐसे ही है, ठीक है। Now the compile time binding and the run time binding. So compile time binding का ही दूसरा नाम है अर्ली बाइंडिंग, ओके, और रन टाइम बाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, लेट बाइंडिंग। लेट मतलब देखो नाम में ही है, अर्ली मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन एंड लेट मतलब एग्जीक्यूशन के बाद नहीं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये ध्यान रखो, लेट का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर अर्ली। आफ्टर अर्ली क्या होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, अर्ली बाइंडिंग। सो इसको यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है मैंने, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। As its name indicates, okay, compiler or linker directly associate an address to the function call. डायरेक्टली मतलब जो फंक्शन हमने लिखा है, ये देखो ये फंक्शन, ये उसको डायरेक्टली क्या करता है, फेच करता है, डायरेक्टली उसको एड्रेस असाइन करके उस एड्रेस के ऊपर का डेटा फेच करता है। ये क्या, ये कब होता है, अर्ली बाइंडिंग में। लेट्स हु ज्वाइनिंग, ठीक है। ये कब होता है, डायरेक्टली अर्ली बाइंडिंग में होता है, ओके। देन इट रिप्लेसेस द कॉल विद द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमने कोड लिखा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज दैट टेल्स दैट मेन फ्रेम टू लीव्स, ओके, टू द एड्रेस ऑफ द फंक्शन। मेन फ्रेम मतलब ये स्टैटिक स्टैक होता है हमारा, उसको किस में ऐड कर देता है, लिप में ऐड कर देता है। सॉरी, ये लिप नहीं होगा, हिप में होगा, ठीक है। लिप में, सॉरी, लिप मतलब एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। लिप पेज पता है ना आपको, लिप लिप आपका जो ट्री होता है, सबके लास्ट का नोड को क्या बोलते हैं, लिप नोड बोलते हैं उसको, मतलब सबसे लास्ट वाला। जैसे अपने घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको लिप नोड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अर्ली बाइंडिंग, इट विल ऑलवेज, ओके, एसोसिएटेड डायरेक्ट, ओके, टू द एड्रेस ऑफ द फंक्शन। जस्ट 1 minute guys. ओके गाइस, कंटिन्यू, ओके। तो अर्ली बाइंडिंग का मीनिंग क्या है, इट विल एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन, ओके, एंड इट विल एसोसिएट विद द एड्रेस ऑफ द डायरेक्ट फंक्शन कॉल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एन अर्ली बाइंडिंग। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ द अर्ली बाइंडिंग, वेरी सिंपल है, ठीक है। सीपीपी प्रोग्राम, ये मैंने प्रोग्राम एक नेट के ऊपर से लिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल है और समझ में भी इजी जाएगा, ठीक है। अ सीपीपी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अर्ली बाइंडिंग, ओके, एनी नॉर्मल फंक्शन कॉल विदाउट वर्चुअल फंक्शन। अब ये जो वर्चुअल कंसेप्ट है, ये हमने अभी तक एक ही बार देखा है। कहाँ देखा है, कौन बताएगा, इनहेरिटेंस में देखा है, बराबर है कि नहीं। कौन से प्रॉब्लम में देखा है वर्चुअल कीवर्ड, एक प्रॉब्लम आया था हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस में, उस प्रॉब्लम का नाम क्या था, यस प्लीज। डायमंड प्रॉब्लम, बराबर है ना, यस प्लीज। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम आया था, डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम का मीनिंग क्या था, एक बेस क्लास था, उसके उसके साथ डिराइव्ड दो क्लासेस थे, और उस दो क्लास के और एक डिराइव्ड क्लास बना था जो कि वो किसको एक्सेस कर रहा था, उसके सुपर क्लास दो को एक्सेस कर रहा था, और वो दो सुपर क्लासेस एक बेस क्लास को डिपेंड कर रहे थे। तो जब भी हम पहला सुपर क्लास कॉल कर रहे हैं तो भी आपका बेस सुपर क्लास कॉल हो रहा था, और दूसरा जब हम सुपर क्लास कॉल कर रहे थे तो भी बेस क्लास कॉल हो रहा था। मतलब जब हम मोस्ट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो दो बार क्या हो रहा था, आपका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम बन रहा था क्योंकि आउटपुट तो सेम ही मिल रहा है आप लोग। सो दैट्स व्हाई वी हैव पुटेड
virtual keyword, okay, in front of, yes, that main base class, so that it will keep one copy for all. ठीक है, तो ये जो अर्ली बाइंडिंग है उसमें वर्चुअलिटी नहीं आती है विदाउट वर्चुअल कीवर्ड. ठीक है, सो इट्स इज अ बाइंडेड अर्ली. हियर we have taken base class and derived class example so that reader can easily compare and see the difference in the output. ठीक है, एक सिंपल दो एग्जांपल, दो फंक्शन क्लास लिए मैंने. फर्स्ट क्लास इज अ बेस क्लास एंड सेकंड इज व्हाट मैं डिराइव्ड क्लास. और बेस क्लास को डिराइव्ड के साथ मैंने क्या किया है, इनहेरिट किया है. देखो यहाँ क्या लिखा है, फंक्शन, उसके अंदर लिखा है इन बेस, और दूसरा फंक्शन है सेम फंक्शन नेम है. देखो, दिस इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. ठीक है ना. एंड देन दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ आउटपुट ऑफ अनदर शो व्हिच इज इनसाइड द डिराइव्ड क्लास. ठीक है, नाउ आई हैव क्रिएटेड मेन फंक्शन एंड सी दिस इज द न्यू कंसेप्ट दैट वी हैव बीन यूज्ड. अभी तक हमने इसे कभी देखा नहीं था. कल हमने देखा था, ऐसे लिखा था हमने बेस स्टार बी, ओके, और ऐसे लिखा था एंड डिराइव्ड, और डी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास. ठीक है, ऐसे लिखा था. इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम ही है. क्यों सेम है, कौन बताएगा? यस, देखो मैं इसको यहां ऐसे लिखता हूं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्लियर ना हो इसीलिए ऐसे लिखता हूं मैं. ठीक है, हाँ अभी देखो ना, मैंने लिखा है बेस, मैंने यहाँ बेस का पॉइंटर बना दिया जैसे बीपी है इधर. ठीक है, डिराइव्ड का डी पॉइंटर बना दिया. अभी मैं लिखता हूं स्टार बी इक्वल टू एम्परसैंड डी. देखो इन दोनों का जो मीनिंग है सेम, इस दोनों का भी मीनिंग है. क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहां डिराइव्ड का डी एड्रेस पास कर रहा हूं तो एड्रेस क्या होता है हमारा, एड्रेस डायनामिक होता है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ एम्परसैंड डी आई कैन आल्सो राइट डायरेक्टली लाइक दिस न्यू डिराइव्ड. ऐसे भी लिखा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो मुझे बताओ इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है. बराबर है कि नहीं? यस और नो? कोई भी डिफरेंस नहीं, सिंपल है. अगर आपको डायनामिक, देखो यहां हमने एम्परसैंड मतलब क्या हो गया, एड्रेस ही पास कर रहे हैं, और न्यू करने के बाद भी क्या होता है, एड्रेस ही पास होता है डायनामिकली. तो दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो, ये 3 लाइन में लिखो, या एक ही लाइन में उसको कवर कर दो. ठीक है, तो ये मैं इसको यहां से हटा देता हूं. क्लियर हो गया गाइस? एकदम सिंपल कोड है. दिस इज अ अर्ली बाइंडिंग. अभी अर्ली बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है, आपको पहले ही पता चल जाता है बाबा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है. सो वही उन्होंने बताया, द फंक्शन कॉल डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, कंपाइलर सी द टाइप्स ऑफ पॉइंटर एंड कॉल टू द बेस क्लास फंक्शन. समझ में आ रहा है ना? देखो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, यस, पॉइंटर किसका बनाया है, बेस क्लास का. तो मुझे बताओ ये जो बीपी फंक्शन और शो फंक्शन हमने कॉल किया है, ये किस क्लास का फंक्शन कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास का होगा या बेस क्लास का होगा? यस प्लीज. ये 4 लाइन आप रीड करो, आपको समझ में आएगा व्हाट विल बी द आउटपुट. द फंक्शन कॉल्ड डिसाइड एट कंपाइल टाइम. ठीक है ना, मतलब कंपाइलेशन के टाइम ही आपको ये डिसाइड करता है बाबा कि मुझे कौन से क्लास का फंक्शन कॉल करना है. कंपाइलर sees the types of pointer and calls the base class function. मतलब यह आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ये वाले मिलेगा इन द बेस क्लास. समझ में आ रहा है आपको? लेट्स हैव वन एग्जीक्यूट दिस वन. Are you getting or not guys? Yes please. Binding.cpp. आ गया इन बेस. पिक्चर क्लियर गाइस? यस.
ओके, नाउ ये हो गया अर्ली बाइंडिंग के लिए, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन से पहले समझ में आता है व्हाट इज आउटपुट. नाउ लेट बाइंडिंग, दिस इज अ क्वाइट ट्रिकी बिकॉज दिस बाइंडिंग इज ऑलवेज हैपनिंग, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे क्या होती है, रन टाइम ही डिसाइड होती है कि एग्जीक्यूट करना है क्या नहीं करना है. दिस इज वन टाइप ऑफ डिसीजन. सो व्हाट इज अ लेट बाइंडिंग? दिस इज कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. In this, the compiler adds the code that identifies the kind of object at the runtime. मतलब ये कंपाइलर क्या करता है, उसको आइडेंटिफायर ऐड कर देता है टू द ऑब्जेक्ट एट द रन टाइम ओनली, नॉट एट द कंपाइल टाइम. So what the runtime will do, then matches the call with the right function definition. मतलब दोनों सेम ही काम करते हैं, पर एक होता है पहले होता है और एक होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. देखो यहाँ भी क्या होता है, वही फंक्शन कॉल होता है जिसको हमने आपने कॉल किया है, वही वही राइट के साथ, मतलब राइटली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए. ओके, दिस कैन बी अचीव्ड डिक्लेयरिंग अ वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल मतलब देखो ऑन द फ्लाई होता है हमेशा, ठीक है ना. ऑन द फ्लाई मतलब ये सिर्फ क्या होगा, रन टाइम कंपाइल टाइम नहीं दिखेगा दिस फंक्शन इज अवेलेबल, बट रन टाइम ये क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, अभी हमारा जो लेक्चर चले, ये वर्चुअल लेक्चर चालू है ना, मैं कहाँ बैठा हूँ आपको पता नहीं है, आप कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं है, पर वी बोथ आर इन एग्जिस्टेड. कुछ समझ में आ रहा है ना. वर्चुअल का मीनिंग क्या है, यस जैसे कि हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ आपको पता नहीं है, पर हम दोनों एग्जिट कर रहे हैं ना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल फंक्शन. तो ये भी है फंक्शन, हमको पता नहीं है फंक्शन है क्या नहीं, कंपाइलर डजंट नो एट द कंपाइल टाइम दिस फंक्शन इज एग्जिस्टेड और नॉट, बट रन टाइम द कंपाइलर विल नो दैट दिस फंक्शन इज एग्जिस्टेड व्हेन यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन. अंडरस्टूड गाइस. देखो एग्जांपल देखो, एक बेस क्लास लिखा है हमने, उस बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको हमने वर्चुअल बना दिया या वर्चुअल कीवर्ड प्रीफिक्स कर दिया. ठीक है, अभी देखो लास्ट टाइम हमने क्लास को वर्चुअल बना दिया, अभी इस फंक्शन को वर्चुअल बना दे, ये इसलिए हमने यहाँ जानबूझ के कीवर्ड डाला था विदाउट वर्चुअल फंक्शन. अभी ये वर्चुअल फंक्शन के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन में चल रहा है. मतलब इसका मीनिंग है कि जब कंपाइल हो रहा है तो कंपाइलर को पता नहीं है बाबा कि इस बेस क्लास में भी शो फंक्शन है. आर यू गेटिंग और नॉट. कंपाइलर को यहाँ क्या समझ में आता है, जब कंपाइलर दिस कोड एग्जीक्यूट कर रहा है यूजिंग द लेट बाइंडिंग, ठीक है, अभी ये कैसे पता चलेगा बाबा कि आपका जो कंपाइलर है, मतलब आपका जो कोड है वो लेट बाइंडिंग में जा रहा है या अर्ली बाइंडिंग में जा रहा है, डिपेंड्स अपॉन योर कोड. अगर आपने इसे नॉर्मल कोड लिखा है तो ऑब्वियसली वो लेट बाइंडिंग में चला, अर्ली बाइंडिंग में चला जाएगा. अगर आपने ऐसा वर्चुअल कीवर्ड कोई स्पेशल यूज किया है तो ऑब्वियसली वो कहा जाएगा, यस लेट बाइंडिंग में चला जाएगा. अभी जब मैं पहले बोल रहा हूँ कि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है तो कंपाइलर को पता नहीं है ये फंक्शन भी अवेलेबल है इनसाइड द बेस क्लास. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फंक्शन और ये फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट वी आर पुटिंग द वर्चुअल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ बेस क्लास शो फंक्शन, बाकी पूरा सेम ही है. ठीक है, यहां बेस क्लास लिखा है, यहां एक वर्चुअल कीवर्ड डाला है, दोनों का प्रोग्राम का आउटपुट अलग अलग होना चाहिए, ऐसा ये बाइंडिंग बोलता है. ठीक है ना गाइस. सो लेट्स चेंज वन कोड ओवर हियर, व्हाट आई नीड टू पुट ओवर हियर, वर्चुअल, बस. ठीक है, लेट्स कंपाइल द प्रोजेक्ट and do the execution. क्या आ गया आउटपुट अभी, यस गाइस. एक्चुअली आउटपुट ये आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, आप एक जगह किसी ने पूछा नहीं, सर जब हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिराइव्ड क्लास का, ये डायनामिक ऑब्जेक्ट बना रहे किसका, डिराइव्ड क्लास का, तो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होना चाहिए, पर हो क्या रहा था, बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता, ये किसी के दिमाग में नहीं आया. देखो मैं और एक चीज आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा, ये पेन में ओपन करके. ठीक है, ये है मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज दिस क्लास इज अ ऑब्जेक्ट, नाम क्या अपना बीपी. दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सॉरी, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सपोज न्यू लेफ्ट.
देखो, जब मैं ऐसे लिखूंगा, ये लाइन में लिखूंगा, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो यहाँ क्या होता है, एक्चुअल मेमोरी एलोकेट होती है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होता है, डायरेक्ट डिराइव्ड का, क्योंकि यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा है। देखो, पहले हमेशा होता क्या, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होती है एंड देन इट विल असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड। ये तो आप मानते हो क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड एग्जीक्यूट होती है और वो असाइन करती है राइट हैंड साइड में। यस, कैसे होता है, यस प्लीज। ये जो इक्वल टू के है, इसको बोलते हैं आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं एलएचएस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे बताओ, पहला कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड वाला होगा या लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला। अरे राइट हैंड साइड वाला होगा। अगर मैंने ऐसे लिखा, इंटीजर एज इक्वल टू 10, तो पहले 10 असाइन होगा कि ए को 10 असाइन होगा, या 10 को ए असाइन होगा? तो पहले क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो मेमोरी एलोकेट होगी पहले डिराइव्ड क्लास को, और जो मेमोरी एलोकेट हुई डिराइव्ड क्लास को, वो हम दे रहे किसको, बेस क्लास को। बेस क्लास का खुद का कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है इधर, ये ध्यान में रखो आप। ये पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, इट विल फेचिंग द डेटा फ्रॉम एड्रेस, विच एड्रेस, डिराइव्ड एड्रेस। हमने देखा है ना अभी, ये मैंने अभी लिखा था ना गाइस, इतना क्यों भूल जाते हो? ऐसे लिखा था हमने, बेस स्टार बी डिराइव्ड डी, लिखा था ना अभी मैंने, स्टार बी इक्वल टू एम्पलसैंड डी। देखो, ये एड्रेस है, ठीक है ना, और एड्रेस के ऊपर का डेटा हम क्या कर रहे हैं, वो फेच कर रहे हैं। तो इस बी का खुद का एड्रेस तो नहीं होगा, एड्रेस होगा, पर यहां किसका एड्रेस दे रहे हैं, उसको हम डी का दे रहे हैं। समझ में आया ना अभी? यस प्लीज। तो ये जो डिराइव्ड क्लास का, इसका ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होना चाहिए था, बट हम कॉल किसके थ्रू कर रहे हैं, बेस के थ्रू कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां क्या हो रहा था, इसमें यहां बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा था। अभी बेस क्लास को हमने क्या कर दिया, ऑन द फ्लाई कर दिया, उसको छुपा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर उसको छुपा दिया और उसका हमने सेम कोड लिखा है, कोई भी कोड में चेंज नहीं है, देखो कुछ चेंज है कोड में, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको हमने वर्चुअल बना दिया। तो कंपाइलर को पता नहीं है ये फंक्शन है क्या नहीं, तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा उसके बेस क्लास, सॉरी उसके खुद के क्लास में अगर है तो वो डिस्प्ले करेगा और वापस आ जाएगा, बस आगे कुछ नहीं करेगा वो। पिक्चर क्लियर गाइस? यस प्लीज। सो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग. So can you tell me what is a binding again? Binding, yes, is a type of process where you are converting your all identifiers into the addresses. एड्रेसेस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसको लोकेशन चाहिए स्टोर करने के लिए। सो जितना भी डेटा है, एड्रेस बोले तो पॉइंटर कंसेप्ट कंपलसरी आता है इधर। इसीलिए जब भी हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों जगह क्या यूज किया है, पॉइंटर कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस प्लीज। Okay, so what is the early binding? Early binding always executed at compile time, and it is also called the compile time polymorphism. What is happening over there? The function call is always happening while we are doing both bindings. Okay, in the early binding, your compile is directly associated with the addresses of all the functions, or we can say all the identifiers. ठीक है ना, जो कि बाइंडिंग में क्रिएट हो चुके हैं। और लेट बाइंडिंग में क्या होता है, जो फंक्शन कॉल किए हैं उतना ही सिर्फ क्या होगा। तो मुझे बताओ अभी दोनों में से बेनिफिशियल कौन है? अर्ली बाइंडिंग में सभी जितने भी फंक्शन हमने डिक्लेयर किए उसका सभी का एड्रेस लोड होता है, और लेट बाइंडिंग में जितने फंक्शन कॉल हो चुके हैं उतना ही सिर्फ लोड होता है। अगर मेरे क्लास में 10 फंक्शन है, इस वाइड के साथ शो 1 शो 2 शो 2 3 ऐसे 10 फंक्शन है, और उसमें से मैंने सिर्फ पहले 7 ही कॉल किए हैं दोनों जगह, और मैंने एक जगह अर्ली बाइंडिंग यूज किया, एक जगह लेट बाइंडिंग यूज किया, तो मुझे बताओ अर्ली बाइंडिंग का आउटपुट और लेट बाइंडिंग का आउटपुट दोनों का भी सेम ही है। बट लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है, जो 10 फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए वो सभी उसके सभी के एड्रेस लोड हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंपाइलर किसके साथ डायरेक्टली वर्क करता है, डायरेक्टली एड्रेस ऑफ द आइडेंटिफायर्स, दैट इज वेरिएबल इन द फंक्शन। बट लेट बाइंडिंग में क्या होता है, जितने फंक्शन कॉल हुए, कितने फंक्शन कॉल हो चुके हैं हमारे, 7 फंक्शन, तो सिर्फ 7 फंक्शन के एड्रेस क्या करता है, लोड करता है। मतलब यहाँ क्या होता है, जो
कंपाइलर का जो मेमोरी हेडक है वो क्या करता है, कम करता है, इसीलिए कंपाइल टाइम थोड़ा स्लो रहता है और रन टाइम क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट रहता है। इसमें कुछ डाउट है गाइस? यस प्लीज, एनी डाउट इन दिस? नो ना? ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये सिंपल है। ठीक है, इसके दो एग्जांपल देखेंगे। ओके, इन सी प्लस प्लस, देखो यहां भी बाइनरी, सॉरी, एक एग्जांपल देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। नहीं, सिंगल देखेंगे, एक फंक्शन सॉरी एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे और स्टॉप करेंगे, ताकि ज्यादा ऊपर से नहीं जाए। या इसको कल देखेंगे, कौन बताएगा? यस, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये 5 मिनट में नहीं खत्म होगा। ओके, सो व्हाट विल डू, विल ट्राई दिस एट टुमारो। ओके गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो इसको मैं आपको अभी भेज देता हूं। कल का एग्जांपल आपने ट्राई किए घर पे? एटलीस्ट कॉपी करके रन करके तो देखो। ठीक है, ये हो गया बाइंडिंग, और ये भी थोड़ा सा रीड करके आओ। दिस इज व्हाट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इसमें दो मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर फंक्शंस एंड नॉर्मल फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन के साथ हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं वो और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा कल रीड करके आओ। ठीक है, तो ये दो चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।